Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Mediville Pro. I hope you guys will be fine and doing great. So today we are just going to discuss all about how to launch your medical billing business in India and Pakistan. In the previous lecture we have just seen that how you guys can run medical billing business in USA. So we will just today see in like what kind of a business registration processes and what are the other types of things which are required to run medical billing business in India and Pakistan. We have just separated or segregated these two things. Okay, so we will just see how you can build your business or how you can run your business in India. Then we will just see that how you can run medical billing, especially business in Pakistan. Okay, so without wasting time, you are going to see how you are going to make it. So running a medical billing business involves managing billing and coding processes for healthcare providers, ensuring accurate reimbursements from insurance companies and patients. The requirements for such a business can vary significantly depending on the country. Here is overview of the requirements in India and Pakistan. Okay, so basically हम पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से देखेंगे कि हाँ भी पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर अगर आप चाहते हैं कि हम भी आप मेडिकल बिलिंग कंपनी बनाएं या मेडिकल बिलिंग बिजनेस रन करें, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोसेस करनी होती हैं, किस तरीके से आप लोग अपना जो बिज़नेस है उसको रजिस्टर करवा सकते हो विद द गवर्नमेंट, उसके लिए कौन से लाइसेंस लेने होते हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो अप करना पड़ता है. ओके, सो वी विल जस्ट सी ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन दिस लेक्चर. सो मेडिकल बिलिंग बिजनेस इन पाकिस्तान एंड इंडिया. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ ज़रूरी होती है दैट इज़ द मेन थिंग दैट इज़ मोस्ट कंपल्सरी, that is going to be education and training. Yes, as we have just seen this one in the previous lecture while we just discussing the medical billing business in USA, that you guys need education and training. Okay, so similarly to the USA, individuals working in medical billing in India should have relevant education and training. This may include diploma courses or certifications programs offered by various educational institutes. Yes, there are a lot of educational institutes as well as online institutes which are offering medical billing basic courses. And you can also learn medical billing basic course on my YouTube channel Medibill Pro. Okay, I have just made a series of lectures, so you can just find these lectures on my YouTube channel. Okay, so आप लोगों के पास एजुकेशन होनी चाहिए. जब आप लोगों के पास अच्छी एजुकेशन होगी अकॉर्डिंग टू मेडिकल बिलिंग, तो ही आप उसके अंदर एक्सेल कर सकते हैं, तब आप उसको सीख सकते हैं और उसके मेडिकल बिलिंग का जो बिजनेस है उसको रन कर सकते हैं. ठीक है, सो इसके लिए आप लोगों के पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भी जाहिर सी बात है जो आप बिजनेस रन करने जा रहे हो उसके बारे में जब आपको नॉलेज ही नहीं होगा, देन हाउ यू विल बी just successful in this kind of a business. Okay, so before starting any business you just need to read out about the outlines, you just need to get knowledge about different kind of a things, processes, workflows about the medical billing. Okay, so education and training, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हो, ऑनलाइन काफ़ी सारी क्या कहते हैं वेबसाइट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ये चीज़ें ऑफर करते हैं, सो वहाँ पर से भी आप सीख सकते हो. ठीक, नेक्स्ट इज compliance with the Information Technology Act 2000 and other relevant regulations is essential. Additionally, business must adhere to the data protection laws and maintain patient confidentiality. You guys know that we have to follow the HIPAA rules, Health Insurance Portability and Accountability Act. If you are running a medical business, then you have to keep the patient's data secure and private. Okay, whenever you are just going to transfer the patient's data from one entity to another entity, then that kind of a data should be secured. Okay, so इसके साथ और काफ़ी सारे rules and regulations होते हैं, वो उनके साथ भी हमेशा compliant रहना लाजमी होता है. Okay, so next is certification. Yes, while not always mandatory certification, but if you have a certified like degree आपके पास होती है, then that is a plus point to your resume or to your professional career. Okay, so आप अगर medical biller बनना चाहते हैं, then you can just pass this certification in certified professional biller from AAPC, and you can also get this certification in medical coding. अगर आप medical coding के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो medical coding के अंदर भी आप लोग अपनी डिग्री ले सकते हो और ये भी आप AAPC से कर सकते हैं. Okay, so certified professional coder and or certified coding specialist can enhance credibility and job prospects. Yes, जाहिर सी बात है जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप कोशिश करते हैं कि हाँ भी आप मेडिकल बिलिंग के अंदर मीन्स ये है कि अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं, तो जब आपके पास डिग्री होती है
तो उससे उससे सर्टिफिकेशंस होती हैं, तो उससे ये है कि आपका प्लस पॉइंट हो जाता है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है और क्या कहते हैं जॉब लेने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट एंड द मोस्ट बर्निंग वन इज़ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, कि हाँ भी आप अगर इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर अपनी मेडिकल बिलिंग कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो उसके क्या प्रोसेस होते हैं, उसको आप किस तरीके से ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए और कौन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, so like any other businesses, medical billing companies in India and Pakistan, you guys know that, need to register with appropriate authorities, obtain necessary licenses and comply with taxation requirements। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, अथॉरिटीज से मीन्स अप्रूवल लेने पड़ते हैं और लाइसेंसेस वगैरह लेने पड़ते हैं, तो वो हम देखते हैं कि हाँ वो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, मेडिकल बिलिंग बिजनेस रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। ओके, सो इसके अंदर पहले देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, so first one is choose a business structure. We have just read this one in the previous lecture when we were just discussing the how you can start your medical billing business in USA. So इसके अंदर आपने अपनी बिजनेस की नेचर सेलेक्ट करनी होती है कि हाँ भी आप नेचर वाइज मीन्स कौन सा बिजनेस रन करना चाहते हो। आया कि इसके अंदर आप सोल मीन्स अकेले ही ओनर हैं उस बिज़नेस के, या उसके अंदर आप टू या मोर इंडिविजुअल्स को मीन्स लेके चलना चाहते हैं, या उसके साथ ये है कि आपके काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स हैं। सो इसकी कैटेगरीज हैं। ठीक है, डिटरमाइन द मोस्ट सूटेबल बिजनेस स्ट्रक्चर फॉर योर मेडिकल बिलिंग कंपनी सच एज सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके अंदर सिर्फ एक ओनर होता है। ठीक है, और बाकी उसके मीन्स ये है कि नीचे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ठीक है, ये एक बिजनेस नेचर होगी। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप, यस इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा मीन्स इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि ओनर होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी एलएलसी। ठीक है, सो ये आप कर सकते हैं। इसके अंदर ये है कि काफ़ी सारे मीन्स और भी दो या दो से ज़्यादा तो पार्टनरशिप में आ जाते हैं। और इसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर ये कंपनी के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि इसके अंदर काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, जो कि काफ़ी सारे टैक्सेशंस के अंदर भी मीन्स ये है कि सेम रोल प्ले करते हैं कि जब भी टैक्स पे करना तो सबके ऊपर जाता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और private limited company PLC, each structure has its own set of legal requirements and implications for liability, taxation and ownership। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे टैक्सेशन के डिफरेंसेस आ जाते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे ओनरशिप के डिफरेंसेस आ जाते हैं, और लाइबिलिटी मींस लाइबिलिटी से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंस होती हैं इन बिजनेस नेचर के। सो आप लोगों को पहले ये देखना होगा कि हाँ भी आप किस तरह की कंपनी जो है वो बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर आप सिर्फ सोल ओनर हो या उसके अंदर टू या मोर ओनर्स हैं। सो उस तरीके से फिर इसको लेके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट इज रजिस्टर द बिजनेस नेम। यस, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यू गाइस नीड टू बिजनेस, आपने अपना जो बिजनेस है उसको क्या नेम देना है, उसको कैसे रजिस्टर करना है। यू गाइस शुड बी कंप्लाई विद द मेडिकल बिलिंग रिलेटेड काइंड ऑफ नेम्स। ओके, सो चूज अ यूनिक नेम फॉर योर मेडिकल बिलिंग बिजनेस एंड वेरीफाई इट्स अवेलेबिलिटी विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, आरओसी से। if you are residing in India, then you will be quite knowledgeable about these kind of a things कि हाँ भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से आपने अपना क्या कहते हैं उस नेम को सजेस्ट करना है, उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, इन द स्टेट वेयर द बिजनेस विल ऑपरेट। वंस अप्रूव्ड रिजर्व द बिजनेस नेम। जब अप्रूव हो जाए तो आप उस बिजनेस नेम को अपना क्या कहते हैं रिजर्व कर लें कि हाँ भी ये मेरी मेडिकल बिलिंग जो है वो कंपनी में बनाने जा रहा हूँ, बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो उसका ये नेम हो सकता है। ओके, so next is incorporate the company. Okay, prepare and file the necessary incorporation documentations with the ROC। ठीक है, ROC को आपने अपनी जो documentations हैं, ठीक है, necessary वो सारी उनको provide करनी है। ठीक है, including the memorandum of एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक मींस मेमोरेंडम होता है, उसको आप लोगों ने क्या कहते हैं वो भी उनको प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये आपको आरओसी से मिल जाएंगी, वहाँ पर आपने ये जो फॉर्म्स हैं उनको फिलअप करने हैं। ठीक है, pay the required registration fees and obtain certificate of incorporation। मीन्स मैं बेसिकली इन सब चीज़ों का मकसद ये था कि हाँ भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाए इनकॉर्पोरेशन कि हाँ भी आप एक इनकॉर्पोरेट कंपनी मीन्स ये कि बनाना चाह रहे हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये रिक्वायर्ड होती हैं। ओके, so next is obtain a permanent account number, PAN number। okay, so this is in India। ठीक है, इंडिया के अंदर ये PAN number मीन्स ये रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अप्लाई फॉर अ PAN number फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हमारे पास FBR होता है। ठीक है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ओके, विच सर्व्स एज अ यूनिक आइडेंटिफाई फॉर योर बिजनेस फॉर टैक्स पर्पजेज। मीन्स जब भी आपका बिजनेस मीन्स कोई रन कर रहे होते हैं तो उसको जाहिर सी बात है टैक्स पे करना होता है, और टैक्स पे करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक मीन्स ये है कि नंबर होता है इंडिया के अंदर, उसे हम PAN नंबर कहते हैं। सो आप लोगों ने PAN नंबर के लिए अप्लाई करना है। जब आप PAN नंबर के अप्लाई करेंगे आपको असाइन हो जाएगा, तो फिर आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो।
Okay, next is registrar for goods and services tax. If your medical billing business meets the threshold for GST, okay, general sales tax registration, apply for GST registration with the goods and services tax network and obtain GS TIN। ठीक है, उसके बाद अपने जनरल सेल्स जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसको रिसीव करना है, हासिल करना है। आफ्टर कि हाँ भी अगर आपका मेडिकल बिलिंग इन जनरल सेल्स टैक्स के को मीन्स ये है कि कंप्लाई करता है तो फिर आप ये है कि GS TIN जो है वो भी ले सकते हैं। ओके, लेने के बाद उसके बाद फिर क्या करना है, obtain other license and registration depending on the nature of your business operations and location, you may need to obtain additional licenses and registration such as professional tax registration, shop and establishment license or any industry specific permits। ठीक है, आप जिस एरिया के अंदर वो कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, या जिस बिल्डिंग के अंदर मीन्स ये है कि आपने अपनी कंपनी बनानी है, आपकी अपनी बिल्डिंग है या किसी और की बिल्डिंग है, आपने लीज पे ली है, रेंट आउट की है। सो इस तरीके से आप लोगों ने ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, ठीक है, और इस तरह की जो काफ़ी सारी रजिस्ट्रेशंस होती हैं तो वो भी करनी होती हैं। ओके, so last is comply with regulatory requirements, ensure compliance with applicable laws and regulations, including those related to data protection, healthcare services, and taxation. Okay, adhere to guidelines issued by the regulatory authorities such as Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of Finance। ठीक है, इनके जो rules and regulations होती हैं उनके साथ भी आप लोगों को comply करना पड़ता है, उनके साथ adhere करना पड़ता है। Okay, सो दीज वर द 7 स्टेप्स थ्रू विच यू कैन जस्ट रजिस्टर योर बिजनेस। इसके अंदर आपने काफ़ी सारे लाइसेंसेस भी लेने हैं, ठीक है, और आरओसी से क्या कहते हैं अपनी क्या कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, ठीक है, और ये चीज़ें आप लोगों ने हासिल करनी होती हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप लोगों को इस तरह की कोई चीज़ यह है कि ट्रबल करती है तो आप लोगों के पास जाहिर सी बात है आपने अपने बिजनेस को लीगलाइज भी करना है। सो यू गाइस नीड टू हायर एन लॉयर। ओके, उससे अपना मीन्स लॉयर्स के साथ अपनी सारी ये जो चीज़ें हैं डिस्कस करनी है कि हाँ भी मैंने इस तरीके से अपनी कंपनी बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे फाइलर भी बनना पड़ता है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरीके से अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है और एम्प्लॉयज़ हैं, आपके पास क्लाइंट है, देन यू कैन जस्ट रन योर मेडिकल बिलिंग बिजनेस इन दिस वे। ओके, so this was all about the business registration perspective as Indian। Okay, so now we are just going to focus on medical billing business registration in Pakistan कि हमें पाकिस्तान के अंदर क्या पर्सपेक्टिव होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम मेडिकल बिलिंग का जो बिज़नेस है उसको रन कर सकते हैं। सो इसमें आ जाता है चूज़ अ बिजनेस नेचर, सेम वही है, ठीक है, डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट लीगल स्ट्रक्चर ऑफ योर मेडिकल बिलिंग बिजनेस सच एज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और प्राइवेट लीगल कंपनी। कंसिडर फैक्टर्स सच एज लाइबिलिटी, टैक्सेशन एंड ओनरशिप। इसके अंदर वही लाइबिलिटी कौन मीन्स कौन जिम्मेदार होगा, टैक्सेशन किसने पे करनी है और ओनरशिप को किन किन के पास होनी है। सो ये अपनी बिजनेस की एक नेचर होती है कि हाँ भी सिंगल ओनर है या दो से ज़्यादा ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो क्या सिचुएशन होती है इसके अंदर। Register the business name, select a unique name of your medical billing company and verify its availability with the relevant authorities। Reserve the business name if required। ठीक है, उसके बाद आपने अपना जो बिज़नेस का नेम है वो वेरीफाई करना होता है, उसको अवेलेबिलिटी उसकी चेक करनी होती है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ ऑब्टेन NTN, नेशनल टैक्स नंबर। ओके, पाकिस्तान के अंदर ये नेशनल टैक्स नंबर होता है, वहाँ पर होता है, इंडिया के अंदर पैन नंबर होता है। रजिस्टर योर बिजनेस विद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR टू ऑब्टेन नेशनल टैक्स नंबर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर टैक्सेशन पर्पजेज। ठीक है, ये आप लोगों ने FBR के दफ्तर से या आप ऑनलाइन भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। Register with SECP, Securities and Exchange Commission of Pakistan. Okay, if forming a company, register with Securities and Exchange Commission of Pakistan by submitting the necessary incorporation documentations and paying the prescribed fees। ठीक है, उसके बाद आपने अपने आप को मीन्स अपनी कंपनी को जो स्पेसिफाइड आपका नेम है कंपनी का उसको आपने SECP से रजिस्टर करवाना है। ठीक है, आप ऑनलाइन भी ये चीज़ कर सकते हो, उनकी नेसेसरी फीस होती हैं वो फ़ी पे करनी है, उसके बाद यह कि आपकी जो बिज़नेस कंपनी है, ठीक है, वो रजिस्टर हो जाएगी। Obtain other licenses and registrations depending on the nature of your business activities and location. You may need to obtain additional licenses and registration from relevant authorities such as local municipal authorities and industry specific regulatory bodies। Okay, so comply with regulatory requirements, ensure compliance with applicable laws and regulations including those related to healthcare services, taxation and data protection। Stay informed about regulatory changes and updates that may affect your business operations। Okay, उसके बाद जो rules and regulations हैं, ठीक है, जितनी भी क्या कहते हैं पॉलिसीज़ होती हैं उनके साथ आपने
एडहेयर करना होता है, उनके साथ कंप्लाइंस शो करनी होती है। और इसके अलावा और भी, अगर आप पाकिस्तान के अंदर कहीं भी लाइक है कि आप कंपनी बनाना चाहते हैं, कंपनी रन करना चाहते हैं, ठीक है, सो उसके लिए जितने भी लाइसेंसेस होते हैं वो आप लोगों को गेन करने होंगे। इन लाइसेंस एससीसीपी से आपने अपना क्या कहते हैं उसके साथ रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद एफबीआर से अपना जो एनटीएन नंबर है, नेशनल टैक्स नंबर, ठीक है, ये भी आप लोगों ने गेन करना होता है। उसके बाद ये है कि आप अपनी कंपनी बना सकते हैं। देन after that you guys need a client। अब आपके पास client होना लाजमी है। if you guys know how you can get clients from USA, then I have already made lectures on this one। तो आप मेरी वो वीडियोस लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। that are those kind of lectures are also available on my YouTube channel। okay, so आप किस तरीके में क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से आप मेडिकल बिलिंग जो क्लाइंट्स होते हैं उनको गेन कर सकते हो फ्रॉम USA। okay, so seventh, establish bank accounts and financial infrastructure. Open a business bank account to manage financial transactions and maintain proper accounting records. Comply with banking regulations and requirements of for business। इसके बाद आपने अपना जो बैंक का एक अकाउंट बिजनेस से के नाम से मीन्स है कि बनाना होता है कि हाँ भी ये मेरा बिजनेस का अकाउंट है। सो इसके अंदर जितनी भी मैं ट्रांजेक्शन्स करूँगा या मुझे क्लाइंट्स की जो ट्रांजेक्शन्स आनी है, ठीक है, जो रिइंबर्समेंट्स आप लोगों को भी मिलनी है, ठीक है, तो वो ये है कि आप लोगों के इस अकाउंट के अंदर आएंगी। Maintain compliance, regularly review and update your business registration, license and tax filing to ensure ongoing compliance with regulatory requirements। ओके, उसके बाद ये है कि आपने अपनी जो मेन compliance है उसको मेंटेन रखना है, जो भी अपडेट्स हो रही हो, जो भी चेंजेस आ रही हो उनको देखते रहना है। ओके, सो द लास्ट पॉइंट वाज इन द फर्स्ट काइंड ऑफ अ थिंग, जिसके अंदर हमने एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देखा, कंप्लायंस देखा, बिजनेस रजिस्ट्रेशन देखा, सर्टिफिकेशन देखा। उसके अंदर फिफ्थ पॉइंट है हमारा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। Investing in appropriate billing software and IT structure is essential for efficient billing processes and compliance with industry standards। Yes, जब आप मेडिकल बिलिंग का एक सेटअप बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर आप बहुत सारी, अब ये तो होगी हमारे कि यहाँ भी बिजनेस किस तरीके से बनाया जाता है। अब उसके अंदर ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उसके अंदर आप लोगों के पास क्लाइंट होना चाहिए, बिलिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, वो आप लोगों को कोई सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके अलावा आप लोगों के पास एटलीस्ट अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर जा रहे हैं तो आप लोगों के पास 20 से 25 ही है कि एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि जाहिर सी बात है आप लोगों ने कॉलिंग के लिए आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनके लिए भी आप लोगों को जाहिर सी बात है अपने क्लाइंट्स, जो आप लोगों के पास क्लाइंट्स हो उनसे डिस्कस करनी होती है कि हाँ भी आप लोग हमें खुद सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे या हमें खुद हम परचेज कर लें, ठीक है। सो यू गाइज नीड टू डिस्कस ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ विद योर क्लाइंट्स। आप लोगों को अपना देखना पड़ता है कि हम भी क्लाइंट्स जो है आपका वो आपको कितनी है कि जो डाटा प्रोवाइड कर रहा है, कितने पेशेंट्स पर डे के हिसाब से आ रहे हैं या किस हिसाब से उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या क्या क्राइटेरिया है वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स का। ओके, so, by following these steps and fully filling the necessary requirements for business registration in India and Pakistan, you can establish a legal and compliant billing company. It advisable to seek guidance and legal financial professionals, okay, familiar with the regulatory environment in each country to navigate the registration process effectively। Yes, आप लोगों के पास लीगल असिस्टेंस के लिए आप लोगों का एक स्पेशल लॉयर भी होना चाहिए, जिससे ये है कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि हाँ भी क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं टू रन अ मेडिकल बिलिंग बिजनेस इन पाकिस्तान और इंडिया। ओके, so these were the necessary things which we just need to overview, and we have just read how you can register your business in USA in the previous lecture, and now we just saw that how you guys can register your business in Pakistan and India. Okay, so if you guys still have any kind of a questions, if you want to run a medical billing company and you are a little bit confused, like how you can just get clients or how you can just make different kind of a things and different kind of a processes which are running in medical billing business, then you can let me know. I will just get back to you soon as possible. Okay, inshallah we'll meet in the next lecture with different kind of a stuff. Okay, so if you guys have any kind of a questions, queries and problems, then you can let me know. I will make a lecture on that kind of a thing as well. Okay, thank you so much for watching me again and for your attention. Inshallah we'll meet in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.